Hello, everybody. Welcome to Vibe Adda by Vishu Rajpal. Your growth is our vibe. We turn imaginations into reality. First of all, I want to wish you all a very happy Women's Day. All the women's out here. Today we are live with a women जिससे हम काफी सारे इंस्पिरेशन ले सकते हैं. Today's story is about a woman who have paused her life just and her dreams for her family, but later she proved dreams की कोई expiry date नहीं होती है. So let's welcome Lavisha to the platform. Welcome to Vaibadda. Please Thank you introduce so much, yourself. We want to Vishu. know about you. Sure, definitely. Thank you so much for having me here. First of Okay, all, hi. happy Women's Day. Hey, same to you. Thank you, It's thank going to be a you. special one doing it today. Yes, it is. It is. It is a special one, going live with the Exactly. women on Women's Day is a special one for sure. Please introduce yourself to the audience. Sure. Okay, hi. This is Lavisha Jain, and by profession, I'm a choreographer since 14 years, and since 2 years, I'm working as an influencer into a field of lifestyle and fashion. And apart from that, you can call it like 30%. I'm a mom blogger as well. I'm a mom of two daughters. Oh. So as of now, working the same. Yeah. Okay, that's great. Okay, so I am very excited to know few things about you. मतलब मैंने आपके बारे में काफी स्टडी किया. I scrolled your page, तो बहुत कुछ Okay. समझ में आया. But जिसे कहते हैं ना दिमाग का कीड़ा, वो तो कभी जाता ही नहीं है. ठीक है. So I Definitely. had so many questions about you. तो मुझे लगा चलो let's ask one on one all these questions. तो आपने जैसे कि बताया you started your journey as a choreographer. ठीक है, आपने वो Yeah. स्टार्ट किया एंड यू वर अ गर्ल बैक देन. अगर हम पहले जाते हैं, आपके क्या ड्रीम्स हुआ करते थे? अभी हम रिवाइंड करते हैं सब चीजें. एट दैट टाइम Surely. व्हाट वर योर ड्रीम्स? Okay, so back in 2000 when I was in school, I had no dreams, specific dreams, but dance एक ऐसा passion था जो मेरे अंदर like since I was a kid in my childhood. ओके. Childhood से वो कीड़ा मेरे अंदर है. तो मतलब आप लोग कैसे स्ट्रेट वॉक करते हैं, मैं स्ट्रेट वॉक नहीं करती थी. मैं अपनी कमर मूव करते करते वॉक करती थी. सो द डांस वाज इनसाइड इन माय ब्लड basically, ओके. and it was very genetic because my mom used to love dancing. ओह So वाओ. yeah, so डांस एक ऐसा चीज था जो मुझे कंटिन्यू करना था, फॉरवर्ड करना था. So I was in my ninth standard, I guess, when I started taking my first class. So it wasn't a proper trained girl. It was हम्म. basically I just started with taking dance classes of kids. तो उस ओके. टाइम पे आई थिंक मैंने 8 days का 100 rupees अर्न किया था. एंड दैट वाज माय वाओ. फर्स्ट सैलरी इन माय हैंड व्हिच आई अर्न लाइक एज अ किड. और वहां ओके. से जर्नी स्टार्ट हुई थी डांस की. सो ओके. नाइस. उसके बाद धीरे-धीरे डांस क्लासेस कंटिन्यू करना, कॉलेज में आ गई. कॉलेज में आने के बाद कॉलेज शोज़ करना, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स करना, एंड देन आई वाज़ अ इंस्ट्रक्टर इन शामक. सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड. फिर संगीत कोरियोग्राफ करना एंड देन द लेवल वाओ. स्टार्टेड ग्रोइंग. एंड देन इट नाइस वाज़ नाइस. समथिंग लाइक कि मेरी ड्रीम पूरी हो रही है. कि हाँ, मुझे ओके. जो डांस मेरा पैशन था, मुझे जहाँ जाना था, मैं वो राइट वे में जा रही थी. But करेक्ट. then, I just got my, I think, TY done. And on the हम्म. very next month, like मेरे results के next month में ही I got engaged. ओह ओके. सो अर्ली. So it was very early, of course, but then everybody was happy, even I was okay with it and all. तो वो शादी भी हो गई, then kids भी हो ओके. गए. So ओके. it was like कि मुझे dance stop करना पड़ गया था. It was a break. हम्म. ओके. But I didn't knew कि वो break कैसे change लाएगा मेरी life में. क्योंकि जैसे ही वो ओके. ब्रेक लिया, मेरे कॉन्टैक्ट्स कम हो गए. आई वाज़ मोर इनटू फैमिली, इन-लॉज़, हस्बैंड्स ऐसे होने लग गया था. तो मेरे ओके. लिए वो ब्रेक ही था क्योंकि मैंने ये सोचना स्टॉप नहीं किया था कि मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है. मेरे अच्छा. दिमाग में बहुत सारी फील्ड होती थी बिकॉज़ आई वाज़ नॉट अ स्कॉलर. आई वाज़ वेरी बैड इन ओके. स्टडीज़, वेरी बैड. सो मेरी ओके. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, मेरा दिमाग पूरा उसमें ही था. या ओके. फिर डांस या फिर फैशन डिजाइनिंग या एनीथिंग, मतलब मुझे कुछ ना कुछ करना ही है, मुझे क्रिएटिव. घर नहीं बैठना है. एग्जैक्टली. मुझे घर करेक्ट नहीं बैठना है. करेक्ट करेक्ट. और घर सो व्हाट बैठने आई का मतलब गॉट ये फ्रॉम नहीं टिल है. नाउ हम्म. इज कि हम्म. आपके लिए डांस एक प्रोफेशन कभी नहीं रहा है. इट वाज जस्ट एन इमोशन फॉर यू. एग्जैक्टली. आई है मीन ना? एवरी तो सॉन्ग, एवरी बीट, आई कुडंट स्टॉप डांसिंग. लाइक मैं बैठ ही नहीं पाती थी. मुझे म्यूजिक सुनाई दिया, मतलब मुझे उठ के डांस करना ही है, भले ही मुझे स्टेप्स नहीं आते, बट आई एम गोइंग टू डू दैट.
ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। Yeah. सो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ अपने प्रोफेशन या पैशन, प्रोफेशन और पैशन में ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। इट इज वेरी नहीं कर डिफिकल्ट, लोग समझ भी नहीं पाते कि प्रोफेशन और पैशन में डिफरेंस क्या है। सो देन एग्जैक्टली। आपने डांस कंप्लीटली छोड़ दिया या यू कंटिन्यूड इट? जैसे आपने बोला यू गॉट एंगेज्ड, मींस उसके बाद का कैसे रहा? आफ्टर योर मैरिज मींस यू वर डूइंग ऑल दिस अगेन, और बैक टू द सेम रूटीन? जैसे आज सुबह ही, आई टेल यू एन एग्जांपल एंड देन आई स्टार्ट हम्म। विद योर कॉन्वर्सेशन। श्योर। फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन आई गॉट अ गिफ्ट, हैप्पी वुमेन्स डे, यू डिजर्व हम्म। दिस एंड दैट। उसके 10 मिनट के बाद एक स्विगी वाले ने घंटी बजाई और पैकेट भर के सब्जियां थी जो मैंने ही ऑर्डर की थी। सो आई वाज ओके। लाइक दैट्स अस, यू नो, ये एक पार्ट ऑफ द हाँ। लाइफ है विमेन का, चाहे विमेन्स डे हो, चाहे मदर्स डे हो, चाहे हमारा बर्थडे हो। दैट्स अस समवेयर डाउन द लाइन, यू नो। दिस इज डेफिनेटली। हाउ इट इज। सो आई जस्ट वांट टू नो कि आप वो डांस में रहे या ये सब्जी वाले हम्म। पैकेट में आपकी लाइफ स्टक होके रह गई उस टाइम पे? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ऑनेस्टली स्पीकिंग, उस टाइम पे मैं एक्चुअली घर में रह गई थी। आई स्टॉप ओके। डांस कंप्लीटली। हम्म मतलब बेसिक डांस क्लासेस होती थी वो भी मैंने स्टॉप कर दिया था। हम्म। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा-सा एक्साइटमेंट थी कि आई एम एंगेज्ड, मेरी शादी होने वाली है, शादी हो गई है, इन-लॉज़ हैं, आई वाज़ इन अ जॉइंट फैमिली। तो ओके इतने सारे लोग एंड जिस एरा में मैं बड़ी हुई हूँ, लाइक इन बैक 1992, आई एम बोर्न इन 1992। तो वो ओके। 2000 और 1992 का बीच का जो एरा था ना, दैट वाज़ लाइक शाहरुख खान वाला एरा। यू रिमेंबर? आई डीडीएलजी, अंडरस्टैंड, हम यस साथ-साथ यस हैं एंड ऑल। यस। तो कल हो ना आई हैव हो। सीन ऑल एग्जैक्टली एंड आई हैव सीन दोज़ मूवीज़ एंड आई हैव ग्रोन अप, और मेरे दिमाग में ऐसा था कि जॉइंट फैमिली बहुत मज़ा आती है, बहुत प्यार मिलता है, ये होता है। एंड आई गॉट दैट फॉर श्योर। ओके पर ओके ऐसा था कि उस बीच में मेरा पैशन कहीं साइड में चला गया था। तो ओके। मैं एक्साइटेड थी कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ बाहर जाऊँ, फैमिली सँभालूँ, आई विल बी अ गुड बहू, ऐसे सब हो गया था, और वो हर गर्ल को होता है, इट्स वेरी कॉमन लाइक इन एवरी गर्ल। करेक्ट 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 तो करेक्ट। उस टाइम पे मुझे इतना दिमाग में नहीं आया कि मैंने डांस छोड़ दिया है और फिर से मैं कैसे स्टार्ट करूँगी, वो हम्म। दिमाग में था ही नहीं। बट आफ्टर अ व्हाइल, आफ्टर अ ईयर, मेरी फर्स्ट डॉटर, आई डिलिवर्ड माय फर्स्ट डॉटर एंड इट वाज़ लाइक आफ्टर 1 एंड हाफ ईयर ऑफ माय मैरिज। तो हम्म। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बच्चा कैसे सँभालूँगी? एवरी गर्ल हैज़ दैट थिंग कि फर्स्ट बेबी कैसे सँभालेंगे, अकेले कैसे होगा? अभी सो आई अभी हैड अ हम ना सपोर्ट। बच्चे तक जाते हैं, लेकिन पहले आई हम नो। लोग उस एक्सपीरियंस तक डिस्कस करते हैं। आई आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। एंगेजमेंट से एग्ज़ैक्ट। लेके वो जो बेबी हुँ, तक का एक्सपीरियंस है, मतलब हुँ, लाइफ जो है ना बहुत चेंजेस होते हैं। जैसे कि आपने बताया जॉइंट फैमिली एंड वो स्टार्टिंग के, बहुत सारे अच्छे वो कि इधर जाना है उधर जाना है, लॉट ऑफ डिनर्स एंड फैमिली लंचेस एंड ऑल, बड़ी सारी चीजें होती हैं उसमें। हाँ, बट कहीं ना कहीं, क्या कभी ऐसा हुआ आपकी लाइफ में, एक मोमेंट आया जब आपको लगा कि आपके ड्रीम्स जो है ना धीरे धीरे एक पॉज पे चले जा रहे हैं? मतलब ये होता है। लाइफ आपको बहुत अच्छी लग रही है, यू आर वेरी हैप्पी इन योर पर्सनल लाइफ, यू आर एंजॉयिंग दैट हनीमून फेस ऑफ योर्स, अ फैमिली लाइफ ऑफ योर्स, यू आर एंजॉयिंग एवरीथिंग। बट कभी ऐसा भी हुआ कि ड्रीम्स एक पॉज पे चले गए? आपको ऐसा फील हुआ क्या? येस, बिकॉज़ जैसे ही वो एक्साइटमेंट खत्म हो गई कि इन-लॉज़ के साथ रहना है, सब करना है, खाना बनाना है, ये सीखना है, वो करना है। जैसे ही वो हम्म खत्म हुआ ना, उसके बाद हम्म। एक टाइम आया था व्हेन आई वाज़ वेरी ट्रॉमाटाइज़्ड। भले ही मतलब ओके मुझे कोई प्रेशर नहीं कर रहा था, बट ये दैट वाज़ माय इनर वॉइस, कि है ना, ओके ऐसे लग रहा था मुझे कि आई डोंट नो अभी मैं फिर से ये कर पाऊँगी कि नहीं। क्योंकि व्हेन यू आर ओके। नॉट मैरिड, व्हेन यू आर नॉट एंगेज्ड, आपको ये फ़ील होता है कि कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। मॉम, ऑफ कोर्स आपकी मॉम खुद की प्रेशर नहीं डालेगी आपके घर का खाना बनाओ एंड ऑल। करेक्ट बट एक टाइम करेक्ट। आता है जब आपके पास और प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर होता है आपके सिर पे, कि आपको सबको हम्म। सँभालना है, आपको सबकी इच्छा पूरी करनी है, सब जगह प्रेज़ेंट रहना करेक्ट। है, और उसके बाद आप सोचते हो कि आपका डांस कहाँ चला गया। तो बेसिकली इट्स लाइक कि एक बार ट्रॉमाटाइज़ हुई थी, एक बार बैठ के रात को सोच रही हूँ कि मेरा डांस कहाँ चला गया? वेयर इज़ I दैट can see गर्ल the हू यूज्ड टू लव emotions of डांसिंग? dance. येस। Yes, I can इट see यूज्ड टू इट that. यूज्ड टू हैपन। और मैं Yes, खुद से I ही बात understand. करती थी। Mm-hmm. तो मैं खुद से ही आई एम सो सॉरी
नो नो, दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। सी, इमोशंस जो होते हैं ना हमारी लाइफ के बेस्ट पार्ट होते हैं। ऐसा कहा जाता है इमोशंस को ना कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बिकॉज इमोशंस हमारे पास जब आते हैं ना तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, बहुत सारे या लेसन दे के जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका पॉज का। लाइक हम मैंने आपको थोड़ा सा पॉज पे डाल दिया था। यू वर नाउ टेलिंग अबाउट योर मदरहुड, नाउ यू या डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल, ओके। सो या लेकिन इवन मदरहुड एक ऐसी फीलिंग है ना जहाँ पे हमें लगता है कि बस लाइफ इज आई रिमेम्बर माई फेस व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट। तो मुझे लगता था यार मैं कैसे, लाइक यू सेड, मुझे लगता था यहाँ खुद को अक्ल नहीं आई है, एक बच्चे को कैसे संभाल एग्जैक्टली, हम दूंगी, खुद यू बच्चे नो। हैं, बच्चा कैसे संभालेंगे? हाँ, आपने एक बहुत इंस्टाग्राम पे एक रील काफी ट्रेंडिंग रही है बीच में कि हम वो जनरेशन की मॉमीज हैं जिन्हें खुद को फास्ट फूड खाने ये से रोकना नहीं आता, तो हम अपने बच्चों को कैसे रोकेंगे। बच्चों को तो मैं कैसे तो रोकेंगे? सोचती थी यार मेरी तो शाम ही मोमोज से होती है या नूडल्स से होती है, आई एम अ फूडी, मैं बच्चे को कैसे रोक दूंगी, आज तक नहीं रोक पाई मैं। सो दैट इज द थिंग। सो जब आप मदर बने या मदरहुड में एंटर किए उस जर्नी में, तो आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खो रही है? मीन्स ऐसा होता है ना, हम हमें वो प्यार तो मिल रहा है, मदरहुड इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। पहले हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं ये जर्नी भी बहुत अच्छी है, आई हैव ऑल्सो सैक्रिफाइस्ड मेनी ड्रीम्स ऑफ माइंड जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग मैरिड, मदरहुड एंड ऑल। बट कहीं ना कहीं क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी आइडेंटिटी मतलब एक बॉस से ज्यादा अब बिल्कुल माइनस में चली गई है? इट यूज टू हैपन व्हेन जब भी लोग है ना, मुझे सिर्फ है ना एक बहू बना के घर पे रख दिया था, कि हम्म। माय हस्बैंड यूज्ड टू थिंक कि माय वाइफ इज गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर मी। और ये ओके। चीज जब मैं कंपेयर करूं मेरी जब शादी के पहले, तो लोग मुझे मेरे नाम से जानते थे। आई हम्म। हैड समथिंग जो लोग जानते थे कि लविशा डांस में बहुत अच्छी है, लविशा को हम्म। हायर करते हैं हमारी संगीत के लिए, लविशा ओके। को हायर करते हैं हमारे बच्चों की डांस क्लासेस के लिए, क्योंकि वो लोग अच्छा सीखेंगे। ओके। तो देयर वाज समथिंग कि लोग मुझे नाम से जानते थे। और शादी के हम्म। बाद एकदम से पॉज आने के बाद ऐसे हो गया था कि लोगों ने मेरे बारे में बात करना बंद कर दिया था। अभी कैसा है कि आप एक प्रोफेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, कंपटीशन होता है, तो कैसा है कि अगर एक पॉज ले लेता है तो दूसरे आगे चले जाता है। तो मेरी करेक्ट फील्ड करेक्ट। में भी यही चीज हुई थी कि मैंने जब पॉज लिया शादी के बाद, देयर वर लॉट ऑफ कोरियोग्राफर्स इन द मार्केट हु यूज्ड टू आई मीन रन लाइक लिटरली आगे चले गए थे। और फिर उसके बाद करेक्ट मुझे फील होता था कि मुझे ये स्टेप्स आ रहे नहीं आ रहे, मैं फिर से शुरू कैसे करूँ, कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसे हो गया था। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट उसके करेक्ट। लिए ही मैं ट्रॉमेटाइज़ हो गई थी कि ऐसा हो रहा था कि मुझे हो फिर से शुरू करने होगा, नहीं होगा, मेरे में उतनी कैपेबिलिटी है, मेरी बॉडी फिज़िकली, मेंटली चेंज हो गई है आफ्टर किड। तो बच्चे की एक्साइटमेंट थी नो डाउट कि बेबी बम्प था, आई यूज्ड टू फील ऑल डिफरेंट फीलिंग्स इन माय बॉडी, सब अच्छा लगता था। बट एक बार करेक्ट मैंने डिलीवरी हुई, उसके बाद उसको सँभालना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, नो डाउट। अ फीमेल चेंजेस टोटली मेंटली एंड फिज़िकली आफ्टर हैविंग अ बेबी। करेक्ट तो करेक्ट। ऐसा था कि हर चीज़ में, और आई हैव गॉन थ्रू अ सी सेक्शन। तो सी सेक्शन ओके। में ऐसा था कि लोग मुझे ये बोलते थे, मतलब अभी मॉम के एजेस के, कि आप आपके स्टिचेस हुए हैं, आप डांस इतना नहीं कर पाओगे नहीं कर कॉन्फिडेंटली, पाओगे। दैट बम उसको कैरी करना, जंप करना, उसके साथ बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो है ना मुझे रोक रही थी कि मैं डांस नहीं कर पाऊँगी फिर से। करेक्ट तो वो सोच-सोच के है ना एवरी डे यूज्ड टू हर्ट मी लाइक कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो वो डेफिनिटली आपकी पर्सनल लाइफ पे भी इफ़ेक्ट करता है। जब आपको लगे करेक्ट। कि आपका पैशन स्टॉप हो रहा है, आप पर्सनल लाइफ में भी आप डिफरेंट बिहेव करने लग जाते हो। ट्रू। लाइक यू आर नॉट दैट बबली एक्टिव लाइक यू यूज्ड टू बी, वो करेक्ट हो करेक्ट जाता है। करेक्ट। और फिर कहीं न कहीं दैट मॉम गिल्ट हो जाता था कि आई डोंट वांट टू पुट एवरीथिंग ऑन माय किड, कि बच्चा हो गया इसके लिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो अगेन आई यूज्ड टू राइट। कम आउट ऑफ दैट, मेकिंग माय सेल्फ अंडरस्टैंड कि नहीं, बेबी भी है तो भी ठीक ही है ना। तो वो एक रेगुलर वुमन लाइफ में मैं फिर से एंटर कर रही थी कि ठीक है, पैशन साइड में रख देता है। बट देन आफ्टर अ व्हाइल आई रियलाइज्ड कि मैं सब साथ में क्यों नहीं सँभाल पा रही हूँ। आई कैन मैनेज, वी कैन डू इट। अगर आप करेक्ट। मैरिड हो, दैट डज़न्ट स्टॉप योर लाइफ। आपके पैशन एक्सपायरी डेट नहीं हो जाती है आपकी। वेरी आप ट्रू, कंटिन्यू कर यस। सकते हो, नेवर टू लेट वाला सीन होता ही नहीं है। जो मैं करेक्ट आज करेक्ट एट प्रेज़ेंट में जहाँ खड़ी हूँ ना, वहाँ पे मुझे ये फ़ील होता है कि नेवर टू लेट वाला होता ही नहीं है, और ये कॉन्सेप्ट मेरी मॉम ने मुझे सिखाया। क्योंकि माय मॉम इज़ नाउ ऑलमोस्ट 60 और वो ओके। आज भी काम करती है। शी इज़ अ ओह दैट्स डिज़ाइनर। नाइस। येस। ओह वाओ। तो वो आज भी करती है, तो वो मेरे लिए है ना एक आई वुड से शी इज़ एन एग्ज़ाम्पल इन फ्रंट ऑफ मी, कि जिनको देख के मैं ये समझ सकती हूँ कि भले मैं 60 की हो जाऊँगी ना, तो भी मैं काम नहीं छोड़ने वाली हूँ। आई वांट टू कंटिन्यू।
आई करेक्ट। टोटली अंडरस्टैंड कि डिफरेंट वुमेन्स की डिफरेंट सिचुएशंस होती है घर पे। आई एम नॉट सेइंग कि सब मेरे जैसे करो। हर एक हम्म। को अलग-अलग चीज़ें फेस करनी होती है घर में। किसी के इन-लॉज़ ट्रू की ट्रू। प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड्स होती है, अपने मॉम-डैड की भी प्रॉब्लम होती है, ज़रूरी नहीं है इन-लॉज़ की ही करेक्ट। हो। बहुत तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। एग्ज़ैक्टली, तो आई फ़ील लाइक कि पैशन को एकदम से खत्म मत करो, मेबी स्टेप बाय स्टेप लो। एक साथ में स्टार्ट मत करो, स्टेप बाय स्टेप करो, कहीं से तो स्टार्ट करो। लाइक कहीं से डोंट तो सिट स्टार्ट एंड करो। जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन कि नहीं हमारा पैशन खत्म हो गया है, सिचुएशन चेंज हो गई है, इसके लिए लाइफ खत्म हो गई है। नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे कभी नहीं ऐसे होता है। एक और चीज भी है, मैंने देखा है कि बहुत सारी विमेन ना अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस कर देती हैं सिर्फ एक फैमिली के लिए। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि एक अच्छी फैमिली, संस्कारी बच्चों वाली फैमिली, या एक अच्छी फैमिली जहां लोग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं 3 टाइम का, उसके पीछे एक उस विमेन का हाथ होता है जिसने अपने बहुत सारे ड्रीम्स का गला काटा होता है, कुर्बानी दी होती है। यस, यस, क्योंकि वो अगर एक टेबल पे बिठा के अपने इन लॉज, पेरेंट्स, हस्बैंड, व्हाटएवर, किड्स एंड ऑल, जो भी फैमिली में है, अगर उनको बिठा के खाना खिला रही है, कहीं ना कहीं हमारी मदर्स भी उसमें आई हैं, हमारी मदर इन लॉज भी आई हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अस, वो कहते हैं डेफिनिटली, ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सो इट्स डेफिनिटली, एग्जैक्टली द यस, आई सेम। टोटली बिलीव जहां इन दैट। हम खड़े हैं वहां पे हमारी मदर्स या मदर इन लॉज भी रह चुकी हैं। सो आई कंप्लीटली अग्री। वो उनकी कुर्बानियां बहुत सारी रही हैं, दे हैव डन सो मेनी सैक्रिफाइसेस। किसी ने अपनी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस किया है, किसी ने अपने पेरेंट्स के घर जाना सैक्रिफाइस किया है, ताकि के यू नो sometimes, I was in conversation with my mom 3 4 days back. So I said mama ki chalo mere sath chalo, I stay in a different city. So I said ma chalo. तो her answer was I wish, but तेरे भाई को खाना खिलाना होता है, इसका खाना बनाना होता है, ये करना होता है, घर में कैसे होगा काम, वो होगा। अरे आई सेड यू आर 66 ना, बस करो बाबा, लेट देम डू। वो अपनी मतलब इट्स जिंदगी खुद बेसिकली जीने आई दे। विश के पीछे इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इतना प्रेशर हाँ। होता है ना उस आई विश के पीछे, हाँ, जो हम लोग आई नहीं सेड चलो समझते हैं। हम हम लोग को ऐसा लगता है गर्ल्स ठीक है नहीं लाइफ आना इसके लिए जिएंगे। नहीं आ रहा है। यस, आई सेड चलो हम एक गर्ली लाइफ में चलते हैं, हम दोनों लड़कियां ऐश करेंगे। आई सेड हर दिस वे। यस, तो हर आंसर वाज आई विश। वो आई विश ने ना, वो उनके आई थिंक बचपन से लेके अब तक के सारे क्वेश्चंस दे दिए, मेरे को आंसर्स दे दिए थे। बट आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, इतने साल आपका ड्रीम, आपके जितने भी पैशंस, प्रोफेशन, इमोशंस, सब चीजें होल्ड पे चली गई थी। चाहे शादी हुआ, चाहे बेबीज हुए, बेबी से बेबीज हो गए। So everything यस। was on hold. But what was that one thing that kept you strong internally? मतलब आपको ये लगा ये तो मतलब I will one day, not today, but one day I will. आई थिंक आई कुड कॉल दैट लाइक कि मेरी मॉम ही थी। लाइक शी वाज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी, बिकॉज जितनी हम्म। बार मैं डाउन फील करती थी, आई वाज फीलिंग लो। मैं बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं रो रही हूँ, मेरे बच्चों ने घर में एंट्री मारी लाइक फ्रॉम स्कूल और ट्यूशन और व्हाटएवर, और मैं फट से मेरे मैं अपनी आंख पोंछ रही हूँ एंड आई एम नॉर्मल, जस्ट टू शो देम कि नहीं आई एम नॉट फीलिंग लो। बहुत बार Very बाथरूम में true. जाके रोई हूँ, अकेले बेडरूम में हम्म। भी रोई हूँ, बहुत बार हुआ है ऐसा। बट देन एंड ऑफ द टाइम जस्ट वन कॉल विथ माई मॉम कि मम्मी मुझे ऐसे फील हो रहा है, क्या करूं। उसकी हम्म। भी ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हुई है, बट शी यूज्ड टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर मी, कॉलिंग कि जैसे मैंने अपना ड्रीम खत्म किया है वैसे तुझे नहीं करना। तुम दोनों को भी मैंने बड़ा किया है, मैं अपना पूरा नहीं कर पाई, यू हैव टू डू इट। तो शी इज लाइक रोना Okay. है एक बार रो ले, सब खत्म कर रो के, उसके बाद व्हेन यू गेट अप नो डोंट क्राई अगेन फॉर द सेम रीजन। Perfect. शी Very इज लाइक true. डोंट क्राई अगेन फॉर द सेम रीजन। अभी जो चीज नहीं मिल रही है ना उसको मिलने की ट्राई कर, डू हम्म। समथिंग। अगर 4 घंटे बच्चों को दे रही है, 2 घंटे घर को दे रही है, गिव 1 hour फॉर योर सेल्फ। जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, लुक एट योर सेल्फ एंड सी what kind of a girl you were and what are you now. So that will make you feel कि नहीं मुझे पहले जैसे सब कुछ करना है, मैं क्यों नहीं बन सकती हूँ। ठीक है, आई एम बिकमिंग मोर स्ट्रोंगर, delivering 2 daughters, being a good wife, being a good bahu, and being a good daughter as well. So she's like कि Correct. अभी आपको 4-5 रोल साथ में करने हैं, and if you are doing it well, then you are more stronger. आप वीक नहीं हो। क्राई करना इज नॉट अ साइन ऑफ वीक पर्सन। रोना सबको आना चाहिए। दिस इज समथिंग कि आप रोके एक बार निकाल दो, आपके आप जो हैवी फील कर रहे हो वो रोके एक बार निकाल दो। निकालने के बाद Correct. वो सेम रीजन के लिए रोना नहीं है। Very true. तो अच्छा, दैट आपने वाज एक चीज समथिंग। सुनी है? हाँ,
वो क्या? 4 लोग, इन लोगों के बारे में सुना है आपने? आई एम सो टायर्ड ऑफ दोस 4 लोग, पता है, आई स्वेयर मिले स्टेइंग कभी इन द आपको? सोसाइटी। मिले कभी क्या वो 4 लोग? आज तक कभी किसी को नहीं मिले, कभी किसी को नहीं मिले, बट पीपल लेकिन स्टिल फॉलो देम, कि कुछ एक यस, स्टेप आगे करने के पहले है ना 4 लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दोस 4 लोग ओनली। इतने ओके। लंबे ब्रेक के बाद कुछ भी स्टार्ट करना, अगर आप कॉलेज में हो उसके बाद आप पहली सब्जी बनाने जाओगे, उसके लिए भी करेज चाहिए। आपने प्रोफेशन से इतना लंबा ब्रेक लिया है, उसके बाद कुछ भी स्टार्ट करो, चाहे आप सुई में धागा डालना सीखोगे, उसके लिए भी करेज चाहिए। सो व्हेन यू रीस्टार्टेड एक्चुअली एज एन इन्फ्लुएंसर, जब आपने सोचा उसका, पहला उसके लिए एक बहुत करेज चाहिए था। बट वर यू एवर स्केर्ड अबाउट पीपल, लोग क्या कहेंगे, क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, व्हाट इफ नहीं किया तो वो 4 लोग मेरी जिंदगी में कहाँ आएंगे, कैसे करेंगे? तो क्या ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए थे या आते हैं आज भी क्या? ओके, आई डोंट नो इफ आई शुड आंसर दिस, बट ये 4 लोग बहुत नोन लोग थे। ओके। आपका ओह, ये यू नो सर्कल है ना, चार यस, लोग यस। ओके, क्योंकि ये वाला सर्कल, ऐसे समझो 80% वुमेन की लाइफ में है ना, ये जो 4 लोग वाला सर्कल है ना, अननोन नहीं होता है, ये नोन होता है। क्योंकि करेक्ट, ये वेरी नोन ट्रू, लोग ही आपकी पर्सनल लाइफ जानते हैं, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, एवरीथिंग। क्योंकि स्ट्रेंजर्स होते हैं, वो आपका इतना ध्यान कैसे सोशल मीडिया पे रख देंगे, या आपको मिल रहे हैं, या वाया वाया टॉक्स। बट जो नोन होते हैं ना, उनको आपके बारे में सब पता होता है। और ये नोन लोग ही रहते हैं बहुत सारे, जो आपके वेल विशर्स नहीं होते हैं। तो इन करेक्ट, करेक्ट, 4 लोगों की वजह से अफेक्ट हुआ था लाइफ। बट व्हेन आई मीन मैं जब भी स्ट्रांगली स्टैंड हुई ना अपने जगह पे, मतलब मैं मेंटली बहुत सेट थी एक टाइम के बाद, कि मुझे ये करना है, इवन इफ दो 4 लोग आर स्पीकिंग, मुझे फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। दे आर नोवेयर करेक्ट, रिलेटेड टू माई लाइफ। मेरी करेक्ट, लाइफ, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे मॉम डैड, मेरा भाई, दोज आर माई फैमिली। मुझे और वो 4 करेक्ट, लोगों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और जब मैंने ये सोचा ना 4 लोगों से जब फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ग्रोथ दिखने लगी मेरी लाइफ में। क्योंकि मैं ट्रू, डर नहीं रही थी। हाँ, कुछ करने के पहले जब आप राइट करते हो ना, तो आप डरते नहीं हो। तो कुछ भी करने के पहले ना वो डर नहीं लग रहा था। जब मुझे दिमाग में ये डाला हुआ था ना सोसाइटी ने, कि 4 लोग क्या कहेंगे, तब कुछ भी करने के पहले डर लग रहा था। आपको वो ये कीड़ा है, उसको आपको दिमाग से निकालना है। वो एक बार निकल करेक्ट, गया ना, आपको अपनी ग्रोथ अपने आप पता चलेगी। एंड हाउ फास्ट इट ग्रोज, आपको क्लियरली आपको विजिबल होगा आपके सामने। ट्रू, ट्रू, ये बात तो सच है। एंड लविशा, टुडे यू आर एन अमेजिंग इन्फ्लुएंसर। आई हैव सीन, योर थिंग, यू आर वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो इन योर थैंक यू सो दिस, मच। एंड यू आर इंस्पायरिंग मेनी women, मोस्ट important। अमेजिंग सक्सेसफुल वर्ड तो हमारे लिए होते हैं, ठीक है, हम कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों से मोटिवेट हो जाते हैं, है ना? और लोगों की अच्छी तारीफ, झूठी तारीफ से हमें फर्क नहीं पड़ता, एक पर्टिकुलर स्टेप पे आगे। Most important for today, when I see your profile, is you're inspiring many women also. So I really want to know, there are many who are struggling with this. How did your actually journey, this influencer journey or the journey on social media begin? मतलब कैसे आपको ये थॉट आया कि मुझे ये जर्नी पे जाना है, दिस इज द थिंग आई वांट टू डू, या बस ऐसे ही मन में आया कर लिया? हाउ इट स्टार्टेड? तो आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ कैमरा। लाइक मैं बहुत टाइम से है ना, अपने फोटोज खुद के ही क्लिक करना, मैं खुद को ही देख के बहुत खुश होती हूँ। आई एम माई फेवरेट बेसिकली। तो Oh, that's मुझे खुद को ही nice. देखना, मेरे खुद के फोटोज क्लिक करना, वीडियोस, मैं दूसरों से ज्यादा खुद को देखती रहती हूँ जनरली भी, इफ आई एम स्क्रोलिंग माई सेल्फ। तो आई वॉज आई मीन वेरी कैमरा फ्रेंडली। और उसके बाद मेरी डॉटर को मैंने इस फील्ड में डाला था, शी इज इन टू बॉलीवुड। सो Okay. शी इज बेसिकली Wow. अ चाइल्ड एक्टर। तो Okay. उसको देखते-देखते मैंने अपना डांस बाजू में स्टार्ट किया, एंड देन आई वाज़ एक्सपेक्टिंग माय सेकंड चाइल्ड। तो सेकंड Mm-hmm. बेबी होने के बाद आई वेंट न्यूक्लियर। अभी मैं Mm-hmm. न्यूक्लियर रहती हूँ। तो Okay. न्यूक्लियर रहते-रहते ऐसे हो गया था कि मैं बहुत एक्सपीरियंस हो गई थी बेबीज़ को कैसे रखना है। तो मेरी Uh-huh. सेकंड वाली जो बॉर्न हुई मेरी सेकंड डॉटर, तो वो होते-होते मुझे ऐसे हुआ कि ठीक है, मैं उसको तो हैंडल कर ही लूँगी। बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल टेक फ्यू क्लासेस आल्सो। फिर उसके बाद आई एम लाइक आई एम नॉट अर्निंग वेल। क्योंकि मुझे अर्न भी करना है, मुझे खुद के पैसे चाहिए, आई वांट माय सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे किसी के सामने झुकना नहीं है। इट्स Correct. नॉट कि मुझे कोई ना नहीं बोल रहा है, बट ऐसा है Mm-hmm. कि मुझे माँगना पसंद नहीं है। आई Correct. फील Correct. कि एक इंडिपेंडेंट वुमन ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, आई फील दैट पर्सनली। सो
मुझे ऐसा था कि मुझे ऐसा कुछ भी करना है जिससे मैं कैमरा के सामने भी आऊँ, मेरा पैशन भी खत्म करूँ, एक्टिंग एंड ऑल, ड्रेसिंग अप, ये सब तो बेसिक चीजें हैं गर्ल्स के लिए। तो मैंने आई वाज़ जस्ट वन डे लाइक सिटिंग इन द हाउस, लाइक आई वाज़ फीडिंग माय बेबी। तो करते-करते मैं स्क्रॉल कर रही हूँ बैठे-बैठे, एंड आई एम लाइक हाउ डू पीपल एक्ट लाइक दिस, हाउ डू दे वर्क एंड ऑल। सो ट्रैवलिंग वीडियोज़ देखी, लाइफस्टाइल वीडियोज़ देखी, एंड आई एम लाइक दिस इज़ लाइक समथिंग व्हाट आई डू एवरी डे। सो ये मैं एक्चुअली लोगों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ जो मेरे पास नॉलेज है। तो आई फेल्ट लाइक राइट, कि एक बार ट्राई करते हैं, लाइक लेट्स गिव अ ट्राई। अगर इफ इट कैन वर्क फॉर अदर लेडीज, आई मीन अगर मेरी चीजें दूसरों के लिए काम आ रही है तो व्हाई नॉट। सो आई करेक्ट। जस्ट स्टार्टेड शूटिंग विथ माई सेल्फ और छोटी छोटी हम्म। वीडियोज करने लगी। आई स्टार्टेड गेटिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्रांड्स, आई स्टार्टेड डूइंग बार्टर कोलैब्स। फिर ऐसे करते करते रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा। पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग ऑन माई पोस्ट रील कि यू शुड एक्चुअली कंटिन्यू विद दिस, मेक इट योर पैशन। और मुझे ये इजी क्यों लगा, क्योंकि ये मैं घर बैठे कर रही थी, मैं बच्चों को भी ओके। ध्यान दे पा रही थी, आई कुड डू ट्रू। दिस सिटिंग एट होम, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग, एक साथ में सब कुछ प्रॉपर्ली जा रहा था, सब करते करते कोई राइट। इग्नोर नहीं हो रहा था, कोई अवॉइड नहीं हो रहा था ऐसे। सो इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ क्योंकि मुझे इवेंट्स अटेंड करने होते थे। आई यूज्ड टू डू, आई मीन मार्केटिंग करना, लोगों से मिलना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता था, बट आई हैड अ मॉम सपोर्ट। तो मॉम किड्स ओके। को देख लेते थे और मैं निकल जाती थी। तो ओके। वैसे कर करके धीरे धीरे आई गॉट इनटू दोस क्राउड जहाँ पे आई कुड सी फैशन सेंस क्या होता है, हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ, लाइक डिफरेंट आउटफिट्स, मेकअप, स्किन केयर। और वैसे वैसे नॉलेज बढ़ती गई एंड आई अंडरस्टूड कि ये चीजें मैं पहले भी करती थी, अब इसको मैंने हम्म। प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। राइट, राइट। तो जैसे आपकी मतलब जैसे आप कंफर्टेबल हो कुछ करने के लिए, आई वुड से कि आप प्रोफेशन ऐसा चूज मत करो कि आपको कहीं अवॉइड करके, घर छोड़ के, लोगों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के आपको बाहर निकलना पड़े। ट्राई टू डू समथिंग व्हिच इज वेरी कंफर्टेबल विद एवरीवन, जो आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो साथ में, कि ये भी हो रहा है और आपका पैशन भी कंटिन्यू हो रहा है, आप स्ट्रेस नहीं हो रहे हो। लेकिन तो एक दिस वाज बात बताओ, समथिंग। देर इज हाँ, अ डिफरेंस रियल लाइफ और रियल लाइफ। ठीक है। आई हैव सीन डेफिनेटली। पीपल सेइंग दिस, यार तेरा बढ़िया है मेकअप करके, जब देखो फूड ब्लॉगर्स को कहेंगे एग्जैक्टली। फ्री का खाना खाने चले जाते हो, है ना, एंड ट्रैवल ब्लॉगर्स को अरे तुम्हें तो घूमने को मिलता है फ्री में, है ना, एंड तुम्हें तो फ्री के गिफ्ट्स मिलते हैं, तुम्हें तो ऐसा होता है, तुम्हारा क्या है, ई करते रहते हो मेकअप करके, Yeah, very easy तुम्हारा तो peasy life. तुम्हारे मजे हैं, है ना, बड़ी अच्छी सी लाइफ है, बड़ी हैपनिंग सी लाइफ है। तो क्या ये सच है, और इज देयर एनीथिंग जिसे हम बीटीएस बोलते हैं, सो बिहाइंड द, इट इज You, बीटीसी एक्चुअली, बिहाइंड द I would कैमरा भी क्या ऐसा ही होता है? exactly. I would love to share that because real life और real life तो definitely बहुत vast difference है. I would give you an example of my husband only. So हम्म। I am a very extrovert person and he's an introvert person. ओके। तो मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि वैलेंटाइंस आ गया है तो मुझे कुछ पोस्ट करना है। एज एज ए इन्फ्लुएंसर लाइफ डेफिनेटली यू ऑल नो कि हमको बहुत एक्टिव रहना यस। पड़ता है। एवरी डे करेक्ट। यू नीड टू पोस्ट समथिंग और द अदर। तो अगर कोई करेक्ट। ओकेशन आ रहा है तो आपकी फैमिली के बारे में पोस्ट करो, वैलेंटाइन आ रहा है तो आपके हस्बैंड के साथ पोस्ट करो। तो मुझे लिटरली मेरे हस्बैंड को एक स्क्रिप्टेड रील देनी पड़ती, एक स्क्रिप्टेड देना पड़ता है कि आपको इधर हंसना है, आपको मुझे ऐसे हक करना है, आपको मुझे इधर किस करना है। तो हम लोग वैलेंटाइन का पोस्ट बना रहे हैं एंड ही इज सच ए इंट्रोवर्ट पर्सन, ही डजंट लाइक फेसिंग कैमरा, ही डजंट लाइक शोइंग ऑफ टू पीपल लाइक व्हाट आई एम डूइंग विद माय वाइफ। एक ओके। कपल पिक्चर भी क्लिक करना होगा ना तो भी वो इतने जल्दी क्लिक नहीं करता। ही इज करेक्ट, सच ए करेक्ट। इंट्रोवर्ट पर्सन। तो मुझे वो दिखाना पड़ता है बाहर, और जब ये सब पिक्चर्स वीडियोस देखते हैं ना लोग, मैं एकदम लवी डवी सॉन्ग्स डालती हूँ और उसको ऐसे क्रिएट करती हूँ कि वी आर लाइक काइंड ऑफ लव बर्ड्स। तो माय रिलेटिव्स आस्क मी कि ऐसे तो बोलते ही नहीं है और ऐसे वीडियो पे कैसे कर लेते हैं। तो बोलते कि ऐसे तो तू बोलती है कि इंट्रोवर्ट है और ऐसे तो वीडियोस बना रहे, सब इट कर इज रहे हैं, बट क्लियरली सेड, सारा खेल कैमरामैन और एडिटर का है, बीच वालों का आई कोई खेल नहीं स्वेयर, है। आई सब कुछ स्वेयर। कैमरामैन और एडिटर का खेल है। एंड बट लुकिंग अगर हम ये ग्लैमरस ऑन सब द चीजों के कैमरा। बारे में बात करें, हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज, आप बोलो पहले। लाइक लुकिंग ग्लैमरस ऑन द कैमरा, हम फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं अगर, तो हम है ना 2 बाइट खाते हैं सिर्फ कैमरा के सामने दिखाने के लिए, एंड ऑफ कोर्स वी गिव अ जेन्युइन रिव्यू फॉर दिस कि फूड अच्छा था नहीं था। बट इफ यू थिंक कि हम्म। इतनी सारी डिशेस हमने अकेले खा ली है, हमने मजे किए बाहर जाके, नो दैट्स टोटली रॉन्ग। क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर्स ग्लैमरस दिखने के लिए वी आर ऑलवेज ऑन डाइट, वी डोंट ईट जंक फूड, चीज, सब कुछ अवॉइड होता है। बट वेन वी शो इट ऑन द हम्म। कैमरा वी शो कि हम खा रहे हैं, बट नो दैट्स नॉट ट्रू।
वो खाने के बाद है ना, बिहाइंड द कैमरा जो हमारी फैमिली बैठी रहती है ना, हम वहां पे दे देते हैं प्लेट। So that's what Yeah, is shown that's in the true. camera. I agree with the same. But ऐसा अच्छा, now let's come back to the basic, Sure. inspiration. काफी women ऐसी भी हैं जो जिन्हें लगता है यार अब बहुत लेट हो गया है, मैं क्या ही करूंगी अब. I am in my late 30s, I am in my 40s. आजकल अगर हम बात करें, आई एम सॉरी टू रेज दिस क्वेश्चन हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट इफ यू सी कितनी सारी लड़कियां ऐसी हैं, मेनी वुमेन आर देयर जिन्होंने अपने करियर को छोड़ दिया. ठीक है. एंड वी कैन रिलेट विद मेनी ऑफ द स्टोरीज वी नो. एंड जिन्होंने अपना करियर छोड़ा अपने फैमिली के लिए, बच्चे के लिए, एंड देन उनके हस्बैंड ने समवेयर डाउन द लाइन उनको छोड़ दिया. ओके. सो Hmm. एंड देन वो लड़की आके सोचती है कि मैं अब क्या करूंगी, आई हैव अ बच्चा ऑल्सो. तो वो उस बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके एक बर्डन ले लेती है. तो बहुत लोग मैंने देखा है कि वो मदर बनने के बाद, मैरिज के बाद डरते हैं एक रीस्टार्ट के लिए. सो आप क्या बोलोगे उन वुमेन को कि अपने ड्रीम्स को दिल में ना रख के हाउ दे हैव टू टेक इट आउट, वो क्या ऐसा कर सकते हैं, मतलब व्हाट शुड दे डू जिनका ड्रीम जो है ना सिर्फ यहाँ नहीं रहे, वो बाहर निकले. बिकॉज आई हैव सीन, देर आर सो मेनी women जिनके पास इतना अच्छा टैलेंट है, दे आर वेरी पैशनेट, उनके ड्रीम्स हम सबसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एक बंद कमरे में किसी बॉक्स में बंद होके रह गए हैं, दे आर नॉट कमिंग आउट. सो हाउ विल यू टेल देम, व्हाट कैन दे डू? Okay, to all the women listening to me today, I would like to tell you कि आप थोड़ा सा सेल्फिश बन जाओ. पुट योर सेल्फ ऑन प्रायोरिटी. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसके पीछे आप सबको इग्नोर करो. आप डेफिनेटली, अगर मैं आपको बोल भी दूं कि आप सिर्फ खुद के लिए सोचो, आप नहीं सोचोगे. आपके किड्स है आगे, आपकी फैमिली है, आपके हस्बैंड है, एवरीबडी इज देयर. पर इस बीच में आपका पैशन छोड़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आप ब्रेक ले लो, आपको गैप हो जाएगा. मैं मेरी पर्सनल लाइफ की ही बात करूं अगर, तो मेरा भी गैप हुआ था. ऐसा हुआ था कि मुझे रीस्टार्ट करना इतना डिफिकल्ट था कि ऐसे लग रहा था कि सब बर्डन मुझ पे ही है. बट नहीं, बी लिटिल सेल्फिश फॉर योर सेल्फ. कि आपका पैशन है ना, एक इंपॉर्टेंट रखो, बाजू में आपकी फैमिली भी इंपॉर्टेंट रखो. बट डोंट लीव योर पैशन. इट्स नेवर टू लेट, व्हाट आई सेड प्रीवियसली. अभी आप 50s के भी हो जाओ तो भी आप अगर रीस्टार्ट करना चाहते हो ना, जस्ट टेक स्टेप बाय स्टेप. आप कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे. जस्ट कीप दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड डोंट लूज द होप कि बच्चे हो गए, फैमिली हो गई, अभी कुछ नहीं हो सकता. ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं है. ऐसा करेक्ट. कभी नहीं होता. एंड लुक एट योर किड. आप उनकी फेस देखो. आप नहीं चाहते हो कि वो बच्चे आपको देख के इंस्पायर हो लेटर ऑन इन फ्यूचर कि मेरी मॉम ने ये किया है, मेरी मॉम ये बनी है, उसने इतनी मेहनत की है. ऑब्वियसली अगर आप कर रहे हो अभी से, तो आपकी जर्नी वो देख के ही बड़े होंगे. वेरी बेसिकली ट्रू. माई मॉम इज इंस्पिरेशन फॉर मी, क्योंकि मैंने उनको देखा हुआ है स्ट्रगल करते हुए. उन्होंने अपनी ड्रीम्स छोड़ी, बट शी लिव्ड हर ड्रीम इन मी. लाइक शी हैज सीन कि मुझे जो नहीं मिला ना, लविशा करेगी वो. सो दैट्स हाउ आई डिडंट स्टॉप. तो वैसे आपको नहीं लगता है कि आपको भी बच्चों को देख के ये सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे ये छोड़ना नहीं है. कल उठ के मेरे बच्चे मेरे बारे में बात करेंगे कि माय मॉम हैज डन दिस, शी इज अ कोरियोग्राफर, फैशन डिजाइनर, वट एवर. बिकॉज मैंने मेरे लाइफ में इतनी सारी फील्ड चेंज की है. व्हेन आई हैड अ वर्ड विथ यू अबाउट गेटिंग ट्रॉमेटाइज, उस टाइम पे कोरियोग्राफी थी, मैंने फैशन डिजाइनिंग किया हुआ था, मैं ब्यूटिशियन रही हूँ, मैं मेकओवर्स करती थी ब्राइडल के लिए. उसके बाद मैं ड्राइंग टीचर थी, कैलीग्राफी टीचर थी. मतलब मैं इतना माय गॉड. कंटिन्यू कर रही थी चीजें कि मुझे स्टॉप नहीं होना है. कहीं स्टॉप हो गई और मैं घर बैठ गई तो मुझे वो डर था. यू नो व्हाट, लोग जो है, मतलब इफ यू गो टू दैट एज, यंग हम्म. गर्ल व्हेन यू वर, तो हम्म. उस टाइम पे ना एक वो एरा था जब डॉक्टर इंजीनियर बहुत अच्छे माने जाते थे. डू यू नो यस. यू हैव मच मोर टैलेंट देन दोज डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑल्सो. इतने मल्टीपल, एक डॉक्टर जो है ना सिर्फ एक ही वो करेगा, या तो वो मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जाएगा. इंजीनियर एक ही टाइप पर्टिकुलर. का इंजीनियर बन सकता है, 10 चीज एग्जैक्टली. नहीं कर सकता. बट यू हैंडल्ड इट वेरी ब्यूटिफुली. एंड वन थिंग आई वांट टू आस्क, क्या अगर आपकी मदर एक हाउसवाइफ होती हम्म. तो क्या आप आगे बढ़ते हैं आज शादी के बाद?
because like you said, she was your Hmm. inspiration. She has always motivated you. Even on a Yes. call with you, you were only talking about one thing, that the biggest, of course, the family is always the motivation, you know. आप जहाँ शादी करके जाते हो, husband, family, but while on a conversation with you, you said your mother was the biggest support in your life. तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी, इफ वी गो ऑन अ नेगेटिव स्केल, कि अगर यू नो योर मॉम वाज नॉट एट ऑल वर्किंग, वो एक हाउस वाइफ होती, होम मेकर होती, तो क्या आप कभी इतना करेज लाते आप अपने दो दो बच्चों के बाद रीस्टार्ट करने का, या वो I इंस्पिरेशन don't मिल know. I पाता can't. आपको? I actually can't be sure about this because मॉम की जनरेशन जो थी, तो उस टाइम पे मॉम की ड्रीम्स इसके लिए कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि वो जनरेशन भी वैसी थी। उस टाइम पे लड़कियां इतनी बाहर नहीं आती थी, खुल के अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करती थी। दे वर टॉट कि यू आर सपोज टू स्टे इन द फैमिली। अब शायद अगर वो ही कंटिन्यू रहा होता तो मैं मेरी मॉम से यही चीज सीखती। एंड आई हैव सीन गर्ल्स ऑफ माई एज ऑल्सो हु सेज कि मैं तो घर संभाल रही हूँ, सास संभाल रही हूँ, बच्चे संभाल रही हूँ, इतना काम कर रही हूँ, उसके बाद बाहर कैसे काम करूँ। तो आई थिंक मैं उस जनरेशन में होती, अगर वो सीखती तो आज मैं ये जो लड़कियां बोलती है उनके बीच में होती शायद, कि यू नो जस्ट कुकिंग यस, फूड, लुकिंग आफ्टर द किड्स एंड ऑल। हो सकता था, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मुझे पुश करने में मेरी मॉम ही सबसे ज्यादा क्लोज थी मुझसे हर चीज में। तो ओके, उन्होंने शायद पुश किया और मैं आज यहाँ पहुंची। और हो सकता है उस टाइम पे नहीं करती तो मैं एक नॉर्मल किड की तरह बड़ी होती कि मुझे स्टडी करनी है, कॉलेज जाना है, कॉलेज कंप्लीट हो गई, शादी हो गई, दैट्स इट। आई वुडंट हैव दैट यू नो, एक जुनून होता है ना कंप्लीट करने का, कि नहीं मुझे ये चीज नहीं मिली है तो मुझे ये चाहिए और ये मैं कैसे भी करूंगी, भले मुझे मेहनत करेक्ट, करना पड़े, घर देखना पड़े, बच्चे देखने पड़े, एवरीथिंग। तो वो एक करेक्ट, जुनून करेक्ट, था व्हाट शी क्रिएटेड इन मी एंड आई एम यस। वेरी मैं थैंकफुल ना, फॉर दिस। हाँ हाँ, या प्लीज प्लीज प्लीज, आप पहले बताओ नो, पहले। आई एम जस्ट लाइक आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस कि उन्होंने ये चीज किया, इसके लिए आज मैं यहाँ पे हूँ, वरना मैं नहीं करेक्ट, होती डेफिनेटली। true. And before we go to the last question of the today's session, I या really want to say one thing, you know, आपसे जो इतना beautiful conversation हुआ, मुझे ना एक song की ना एक line याद आ रही है, जो actually मैं कल से ही बोल रही हूँ। I don't know why मेरे दिमाग में ना वो कल से एक बार, आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, एक बार बेबी सेल्फिश होके अपने लिए भी जियो ना। आई एम नॉट श्योर आपने कभी सुना है ये गाना। यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, एंड आई डू दैट डेफिनेटली सेल्फिश। आफ्टर दिस। यस यस, मतलब वो एक लाइन जो है ना, कल आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, ही वाज वेरी मच डिमोटिवेटेड, हर किसी की लाइफ में डेज होते हैं। तो मैंने उसको यही बोला, देख भाई, एक बार जिंदगी में अपने लिए सेल्फिश होके सोचो, बाकी सब जाने दो किनारे पे। सो दैट्स हाउ इट इज। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन, अगर if you could go back and talk to that younger self of yourself, the girl who was so much talented, who had a lot of dreams, passions, and a lot of emotions in with her, अगर आप उस लविशा के पास जा पाते, जिसने अपने ड्रीम्स को एकदम पॉज कर दिया, होल्ड पे रख दिया, what would you tell her today? um आई थिंक जस्ट वन लाइन कि अगर मैं खुद को खुश रख रही हूँ ना तो मैं दूसरों को भी खुश रख पाऊंगी। सो बेसिकली Correct, इट्स ऑल अबाउट मी। अगर मैं ही खुश नहीं हूं तो वो 10 लोग जो मुझसे कनेक्टेड है वो खुश कैसे रहेंगे। इफ आई टॉक अबाउट माई ड्रीम्स ऑल्सो, अगर उस टाइम पे मैं छोड़ देती, खत्म कर देती, तो जो बबली लविशा को मैं जानती हूँ लाइक इन लास्ट 2000, वो मैं अभी नहीं होती। क्योंकि आज जब भी मेरी डॉटर्स मेरे साथ रहती है ना, आई बिहेव द सेम वे। आई थिंक अबाउट माई दैट वर्जन एंड आई फील कि मेरी correct, डॉटर्स मेरे फ्रेंड्स जैसी है, आई कैन बिहेव लाइक दैट, जैसे मुझे बोलना है, जैसे correct, करना है, मुझे डांस करना है उनके साथ, जो करना है वो। पर अगर उस टाइम पे अगर मैं वो ड्रीम मर जाते हैं ना, तो आई थिंक मैं एक स्ट्रिक्ट मॉम होती या वेरी टिपिकल मॉम होती, जो देयर वुड बी अ गैप बिटवीन माय डॉटर्स एंड मी, कि मैं मम्मी हूँ और तुम लोग बच्चे हो। एंड नाउ आई बिहेव लाइक फ्रेंड्स विद देम। दे आर ऑल्सो correct, लाइक सो कंफर्टेबल विथ मी टॉकिंग एंड ऑल। तो मैं इसके लिए भी शायद मेरा नेचर चेंज नहीं हुआ। तो correct, आई वुड से टू ऑल द वुमेन्स कि आप पहले खुद को खुश रखो। खुद को प्रायोरिटी दोगे तो आपके पैशन भी खत्म होंगे, आप फैमिली में भी खुश रह सकते हो और दूसरों को खुश रख सकते हो। अंटिल एंड अनलेस यू आर नॉट हैप्पी विद फ्रॉम विद इन, आप दूसरों को खुश ही नहीं रख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। correct, अप correct, डाउन, correct, सिचुएशन चेंजेस, बहुत सारे लाइफ में हर एक के लाइफ में आते हैं। इट्स नॉट कि कोई एक इंसान लेके बैठे कि भाई मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं है, वो ऐसा नहीं होता है। सबके लाइफ में अप डाउन होते हैं। अगर मैं इतनी खुश दिख रही हूँ तो मैं बहुत सारी चीजों से गई हुई हूँ,
तब जाके अब मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं शायद खुद को खुश देख सकती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि अभी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, होते हैं, सबकी लाइफ में होता है। बट आई वुड से कि प्रॉब्लम्स को एक साइड में रखते हैं और खुद को खुश करना एक साइड में रखते हैं। Let's keep Very true. ourselves happy, give ourselves the first priority. That's how you'll stay happy from within. That's what I would Correct, say. correct. So, Lavisha, it was a great session. To conclude the session, I'll only say one line. I think many will relate with it. A woman may pause her dreams for the family, but she never forgets how to fly. वो कभी उड़ना नहीं छोड़ती है या भूलती नहीं है कि उसको उड़ना कैसे है ना? She Yes, was a daughter, a wife, or a mother, but she will never, stop herself. She'll never stop her dreams to come true. A woman is a true power. So let's celebrate this definitely. womanhood, and once again wish you happy Women's Day and enjoy your day. Thank you so much for coming Same to here. you, It Vishu. It was lovely Thank you. talking to you. Same Yeah. here. I love talking to you. Bye and have a good Bye day. bye. Enjoy See the you. session. Same day, dear. Bye. Bye Okay. bye. Thank you so much. It was a lovely session with Lavisha. We wish to see her soon again with us. So, thank you and have a great day, everyone. Bye bye.